ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ತಂದೆ ಸಪ್ಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮ ಕಾಪಾಡಿದ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಪರೋಕ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ಆಶ್ರಯಿಸು, ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಡ್ತೇನೆ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ನೀನು ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ರಾಗ ಆಡುವಾಗ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ನೋಡಿ ಅವರು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ, ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಈ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲನ ಕ್ಷೇಮ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡ್ತೇನೆ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿವೆ ರಾಜ. ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಪಡುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಅವರ ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳು ಪಾಪದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಕ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಪಡಿಸಿ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೀವ್ರತೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ. ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಸಪ್ಪ, ಸದಾ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿವೆ ರಾಜ. ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಸಯ್ಯ, ಈ ದಿನ ಬಾಳಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆನಯ್ಯ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಸಯ್ಯ, ಈ ದಿನ ಬಾಳಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆನಯ್ಯ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಹುಡುಕಲು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಹುಡುಕಲು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ಬೇರೇನು ಬೇಡ ಏಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ಬೇರೇನು ಬೇಡ ಏಸಯ್ಯ. ಬೇರೇನು ಬೇಡ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ಬಡವನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಸಯ್ಯ, ಈ ದಿನ ಬಾಳನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆನಯ್ಯ. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಮುಖ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಮುಖ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಈ ಭಗವಂತ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಸಯ್ಯ ಈ ದಿನ ಬಾಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆನಯ್ಯ ನಾನಂಬಿದ ನನ್ನವರು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾದರು ನಾನಂಬಿದ ನನ್ನವರು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾದರು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದೆ ಸಯ್ಯ ಈ ದಿನ ಮಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೆನಯ್ಯ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯದ ಸಂಘದ ವೇದ ಭಾಗವು ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಸಂಧಿ 13 ವಚನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಲೋಚನ ಶಿಷ್ಟರಿದ್ದರೆ ಅವರು ಓದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಸಂಧಿ 13ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಉಪ್ಪು ಸಪ್ಪಾಗದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾತರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿ ಬಂದಿತು. ಜನರು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಾರದು. ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಗವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡುವಂಥವರಾಯಿತು. ಆತ್ಮನೇ 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 ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆ ಹಾಗೆ ಆತುರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೃದಯ ಆತುರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೃದಯ ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆ ಹಾಗೆ ಆತುರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೃದಯ ಆತುರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೃದಯ ಜೀವ ಜಲವಾಗಿ ನೀಸು ಎಂದವ ಜೀವ ಜಲವಾಗಿ ನೀಸು ಎಂದವ ಆತ್ಮನೇ 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 ಕುಂದಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಬಾತಿದೆ ಹೃದಯ ಒಳಗಿದೆ ಶರೀರವು ಒಳಗಿದೆ ಶರೀರ ಕುಂದಿದೆ ಮನವು ಬಾತಿದೆ ಹೃದಯ ಒಳಗಿದೆ ಶರೀರವು ಒಳಗಿದೆ ಶರೀರ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವ ಸುರಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶ
आइए हम अपने आँखों को बंद करें और सर को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यहोवा, तेरा नाम की महिमा गौरव करते हैं प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर, तू कितना भला परमेश्वर यहोवा। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर यहोवा, इस घर में हम सबको इकट्ठा किया प्रभु जी। सचमुच तो हमसे बहुत प्यार किया प्रभु जी, तेरे प्यार के लिए हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर यहोवा। पिता परमेश्वर, आज की शुरुआत से लेकर अंत तक तूने हमारे साथ रहकर प्रभु यहोवा तूने चला, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में बहुत सारे उपकार तूने किए प्रभु जी, उस उपकार के लिए हम स्तुति करते धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, ये जो दिन चल रहा है प्रभु जी, उसमें भी तू प्रभु यहोवा तेरे लोगों को प्रभु जी जो तुझ पर भरोसा रखे प्रभु जी, उन लोगों को आज तक तूने संभाला प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते स्तुति करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर यहोवा, तेरा वचन यूं कहता है, जो परमेश्वर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे और फलजित नहीं होंगे प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु यहोवा तुझ पर विश्वास रखे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे प्रभु। पिता, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आज सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। जो महामारी आई है प्रभु जी, उससे भी तूने प्रभु यहोवा तेरे लोगों को बचाए रखा प्रभु जी, किसी को उसमें से जाने नहीं दिया प्रभु यहोवा, क्योंकि प्रभु ये बीमारी हमारी परीक्षा के लिए आया प्रभु यहोवा। पिता परमेश्वर, सभी लोग तेरे ओर फिरे, अपने पापों को प्रायश्चित करे प्रभु, अपने पापों को छोड़कर मेरे प्रभु यहोवा तेरे मार्ग पर चले, इसलिए ये बीमारी आई है मेरे प्रभु जी। कहीं लोग प्रभु जी बाइबल नहीं छूते थे प्रभु जी, पिता उनको वचन भी नहीं मालूम था प्रभु यहोवा। जब यह कोरोना आया मेरे प्रभु जी, बहुत सारे लोग प्रभु तेरे ओर फिरे प्रभु जी, अपने मन को फिराया मेरे प्रभु जी यहोवा। पिता परमेश्वर, सबके हाथ में बाइबल प्रभु जी, पिता वचन पढ़ते हैं प्रभु यहोवा, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक द्वार बंद हुआ प्रभु, जब सब बंद हो गए प्रभु, लेकिन तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, हर घर में तूने चर्च खोला प्रभु जी, इसलिए हम स्तुति महिमा गौरव करते हैं प्रभु जी। तेरे उपकार के लिए स्तुति करते हैं मेरे प्रभु यहोवा। पिता परमेश्वर, विशेष कर मेरे प्रभु जी, आज के ये वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वचन देने वाले तेरे दास के लिए हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। पिता, जो वचन आएगा मेरे प्रभु यहोवा, वो हमारे लिए आत्मिक मानना हो मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उसे सुनकर मेरे प्रभु यहोवा उसके जैसे हम चले प्रभु, केवल सुनकर नहीं प्रभु जी, उसके जैसे चलने के लिए हम सबको तो आत्मिक रूप से बल दे मेरे प्रभु जी। सुनने वाला कान प्रभु जी, जो हृदय है प्रभु जी, खोल दे प्रभु जी, हमारे हृदय में प्रभु वचन लेकर प्रभु उससे चलने के लिए कुछ सहायता करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर यहोवा, पिता ये वीडियो देखने वाले पिता आशीषित हो जाए प्रभु जी यहोवा। पिता, जो साक्षी रहेगा प्रभु जी, जो वचन रहेगा प्रभु जी, उससे अधिक प्रभु जी तेरे ओर फिरे मेरे प्रभु जी यहोवा। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु जी। हम सब प्रभु यहोवा फिर एक बार हम सब प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू के नीचे आते पिता परमेश्वर, हम सबको तेरे लहू से शुद्ध और पवित्र के साथ धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता, तेरे प्यार के लिए हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु जी। पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया प्रभु जी, तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए तूने दे दिया प्रभु, तूने अपने लिए नहीं रखा मेरे प्रभु जी। पिता, उसके लिए हम बदले में कुछ नहीं दे सकते प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह ने लहू देकर हमें उसने खरीद लिया प्रभु जी। अब हम भी हमारे नहीं प्रभु जी, हम प्रभु के हैं प्रभु यहोवा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी सुनने समय के लिए प्रभु जी। जो वीडियो देखेंगे प्रभु जी, सबको तो आशीष से भर दे मेरे प्रभु जी। ईश्वर से प्रार्थना यीशु के नाम से मांग के पिता, इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आज फिर एक बार हम बुधवार की आराधना में इकट्ठा हुए हैं और हम जो है मत्ती उसका 5वां अध्याय को हमने प्रारंभ किया है और अब पिछले 8 सप्ताह जो है हमने बियाटिट्यूड्स मतलब एक मसीही के लक्षण या गुण स्वभावों को हमने देखा है और आज उस पर्वतीय संदेश को हम आगे बढ़ाते हुए आज और एक वचन की ओर जाते हैं। मत्ती उसका 5वां अध्याय 13 वचन ये कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख में आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो मकसद, जो उद्देश्य, जो प्रामुख्यता के साथ आपने वचन को कहा है, इस वचन की गहराई को और इस वचन को हमें सुनने के लिए आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। पुराने जमाने में नमक या फिर सॉल्ट को बहुत ही महत्व दिया जाता। सॉल्ट हैड ए ग्रेट वैल्यू।
रोमियो की सरकार इन द टाइम्स ऑफ द रोमन्स जो है एक टाइम पर जब रूल करते समय वो ये कहते हैं कि सूर्य के अलावा अगर कोई सबसे अगर मुख्य चीज है तो वो है नमक, और इसीलिए वो जो है लेन देन कई बार लोगों के साथ नमक से किया करते। और इसीलिए जो है हम देखते हैं कि आज के दिन हमारे पास जो शब्द है मंथली सैलरी, यानी कि हर महीने की पगार हम कहते हैं सैलरी, द वर्ड हैज कम फ्रॉम द सैलेरियम। सैलेरियम का शब्द का अर्थ होता है द सॉल्ट मनी, यानी कि नमक के पैसे। तो उस जमाने में रोमी सरकार जो है इस नमक को लेन देन, यानी कि किसी को देना है किसी को लेना है तो नमक को वापरते थे। तो इट हैड अ मोर वैल्यू ड्यूरिंग दैट टाइम। उस समय पर इसके लिए बहुत ही महत्व था। केवल उतना ही नहीं, पुराने जमाने में हम ये भी देखते हैं कि इस नमक जो है एक पवित्रता को दर्शाती है, एक परिशुद्धता को दर्शाती है, और ये हमेशा जो है नमक को इस्तेमाल किया जाता है कोई भी चीजें सफाई करने के लिए, फॉर द क्लेनलीनेस, फॉर द सैंक्टिफिकेशन। आज भी अगर आप देख रहे हैं बाजार से सब्जियां लाने के बाद हम नमक डालकर उसे क्लीन करते हैं या फिर यूज करते हैं कि ये हमारे लिए इंसेक्टिसाइड बनकर हमारे लिए काम करे। सो द सॉल्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्यूरिफिकेशन। एक परिशुद्धता के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था करके देखते हैं। केवल इतना ही नहीं, नमक को जो है, सॉल्ट को जो है, इट्स ए मार्क ऑफ फ्रेंडशिप, एक दोस्ती का एक चिन्ह माना जाता है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, दोस्ती का वाचा करते हैं, तो नमक से वाचा करते थे उस टाइम पर। तो सॉल्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज के दिन में अगर हम देखेंगे, हमारे लिए नमक जो है उतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन आज नमक के बिना हम खाना नहीं खा सकते हैं। सो नमक की एक ऐसा पत्थर है जिसको इंसान खाता है। रॉक, सॉल्ट इज द ओनली रॉक दैट मैन ईट्स। और कोई पत्थर नहीं खाता है, केवल नमक खाता है। और एक पत्थर है, इट्स ए स्टोन और इट्स ए रॉक दैट मैन इज ईटिंग, बट स्टिल ही इज लिविंग। पत्थर खाने के बाद भी जो है मनुष्य आज जिंदा रहता है, और इसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। अगर हमारे शरीर में अगर हम देखते हैं नमक की मात्रा जो है ज्यादा है या फिर बरोबर है, इवन हम इन द ब्लड देयर इज अ सॉल्ट, हमारे ब्लड के अंदर सॉल्ट है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे, नमक जो है इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। हर एक के जीवन के अंदर जो है, हर एक क्षेत्र में नमक जो है बहुत ही प्रामुख्यता निभाती है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने इसका बहुमूल्य इस चित्र को यूज करते हुए उन्होंने ये कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ये किसे कहता है उस समय पर जो है वहां पे जो शिष्य बैठे थे, जो लोग उनके पीछे आने वाले थे, सारे लोग सुन रहे थे। और आज ये वचन मुझे और तुम्हें जो है कहा जाता है। एक शब्द जो है हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, YE, you are the salt of the earth। नॉट ओनली जस्ट यू, बट ई मतलब होता है यू ऑल, यानी कि आप सभी लोग, जितने भी विश्वास करने वाले हैं वे सारे लोग जो है पृथ्वी के नमक है। और पृथ्वी के नमक ऐसे वैसे नहीं, बट वी आर वेरी वैल्यूएबल। हम जो है बहुत ही बहुमूल्य है और बहुत ही जरूरतमंद है, और उसी तरह से जो है हमारे बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो आज पृथ्वी के अंदर जब मुझे और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह जो है नमक कहकर कहता है, हम पृथ्वी के नमक कहकर के कहता है, तो आज मेरी और तुम्हारी जो है प्रामुख्यता बहुत बड़ी है। So what is my role as a salt on this earth? मेरी आज एक नमक की भूमिका किस तरह से मुझे निभानी है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं पुराने नियम और नए नियम से लेकर 3 बातों को आपके सामने लाता हूँ। There is a lot of characteristic। इस नमक के बारे में अगर आप स्टडी करने जाएंगे बाइबल से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं 3 बातें आपके सामने लाना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है, नमक को जो है परमेश्वर हमेशा ये कहते थे कि आप अपने बेटों को, यानी कि परमेश्वर के लिए यज्ञों को जब अर्पण करोगे, उनके अंदर नमक होना जरूरी है। गिनती उसका 18वां अध्याय 19वां वचन, नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 19, लेविटिकस चैप्टर 2 वर्स 13, लेवी व्यवस्था 2रा अध्याय 13 वचन, एज्रा उसका 7वां अध्याय 20 और 22 से वचन के अंदर हम देखते हैं
कि नमक को जो है परमेश्वर के भवन में जब हम यज्ञ को लेके आते थे, उस मीट को या जो कुछ भी मटन है उस सारे चीजों को नमक से लदे हुए यानी कि नमक से रगड़ा हुआ, नमक लगाया हुआ चीज जो है परमेश्वर के लिए अर्पण करना बहुत ही जरूरी था। और उस समय और एक भी चीज थी, परमेश्वर के भवन में रोटी को भी जब लेकर आते थे, खमीर वाली रोटी नहीं लाना है, लीवन ब्रेड का। खमीर यानी कि वो खमीर हमेशा इस बात को जताती है कि कोई भी चीज को सड़ा देना या फिर उस चीज को जो है कम संपूर्णता से उनको मार देना, इस तरह का काम कर दे। इट लीवन ब्रेड या फिर खमीर जो है इस तरह से उसका प्रतिरूप कहा जाता है। सो सैक्रिफाइसेस आर ऑलवेज नॉट विद द लीवन, हमेशा बलिदान जो परमेश्वर के लिए चढ़ाया जाता है खमीर से लदे हुए नहीं बल्कि नमक से रगड़े हुए चीजों को आपको परमेश्वर के लिए अर्पण करना है करके कहा जाता है। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो टुडे गॉड इज टेलिंग अस, यीशु मसीह आज मुझे और तुम्हें कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। इसका मतलब क्या है? आज मैं जब परमेश्वर के भवन में जब जाता हूँ, परमेश्वर के लिए भेंटों को जब अर्पण करता हूँ, मैं अपने आप को जो है उस यज्ञ के अंदर एक नमक से लदे हुए के रूप में परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण करना बहुत ही जरूरी है। द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द सॉल्ट ऑफ द अर्थ इज दिस, दैट आई नीड टू offer myself as a salt to the Lord। सबसे पहली बात यह है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में बलिदान के रूप में जब अर्पण करूंगा, एक नमक की तरह उनके सम्मुख में अर्पण करना है करके हम देखते हैं। इसलिए पौलुस भी ये कहता है, रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 और 2 वचन ये कहता है कि तुम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित और भाते हुए बलिदान के समान उनके सम्मुख में अर्पण करो। दैट मीन्स व्हाट? ये जो है इट शुड बी सीजन विद द सॉल्ट। तुम्हारे अंदर जो है नमक की तरह उस परमेश्वर के सम्मुख में अर्पण करना है। सो द फर्स्ट थिंग वी सी, पहली बात हम ये देखते हैं कि इस नमक की बात ये है कि हमें परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को बलिदान के रूप में अर्पण करना है, विदाउट विच ही विल नॉट एक्सेप्ट। बिना नमक के जो है परमेश्वर इन बलिदानों को नहीं स्वीकार करता है। सो आज परमेश्वर जब मुझसे और तुमसे कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, सो मैं जो है अपने आप को उस परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में अर्पण करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा प्रामुख्यता हम ये देखते हैं इस बारे में, बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि सॉल्ट वॉज यूज्ड एज अ कवनेंट। ये नमक जो है हमेशा एक वाचा के रूप में उसे इस्तेमाल किया गया है। वाचा हम कहते हैं, कवनेंट यानी कि एक वाचा परमेश्वर के साथ जब बांधा जाता है, इट इज फॉर एवर, वो हमेशा के लिए होता है, हमेशा के लिए होता है। इट रिप्रेजेंट्स, सॉल्ट जो है इट रिप्रेजेंट देयर इज अ कवनेंट बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल। जब नमक से परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, एक वाचा उनके साथ में बांधी जाती है। दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय 4 और 5वें वचन के अंदर हम पाते हैं। उसी तरह से गिनती और 18वां अध्याय के 19वें वचन में भी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 तरह की वाचा परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ बांधा है। एक पहली वाचा में देखते हैं कि एरनिक यानी कि आरोन के साथ जो यहाँ याजक था, उनके द्वारा इजराइलियों के साथ में एक वाचा बांधी और कहा कि तुम परमेश्वर के लिए यज्ञों को अर्पण करते समय हमेशा नमक के साथ अर्पण करना है, और इजराइलियों को परमेश्वर ने एक नमक के तौर पर कहा। उसके बाद जो है दूसरा हम देखते हैं डेविड के साथ, राजा दाऊद के साथ एक नमक का वाचा बांधा और उन्होंने कहा, ये वाचा कौन सी वाचा रहेगी कि परमेश्वर का सिंहासन जो है या फिर उनके राज्य के सिंहासन जो है दाऊद के द्वारा जो है और अनंत काल तक चलती रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। हम इसी बात को देखते हैं कि यीशु मसीह दाऊद के संतान होकर के पैदा हुआ और उनके राज्य को हमेशा तक संभाला करके देखते हैं। सो इट वाज अ कवेनेंट, सॉल्ट ऑफ कवेनेंट। ये नमक की वाचा निरंतर बनी रहने वाली वाचा है। आज परमेश्वर मुझसे और तुमसे जो है नमक के द्वारा एक वाचा किया है। वाचा क्या है पता है? कि तुम मेरे हो, यू आर माई पीपल, तुम मेरे लोग हो और तुम्हें जो है मैंने बचाया है, सो तुम हमेशा मेरे लिए बने रहोगे। यू विल बी ऑलवेज माइन। तो एक वाचा हमें दर्शाते हैं। जब जब इस नमक के बारे में कहेंगे, इट सेज दैट यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ,
उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ उस वाचा में, निरंतर की वाचा में बंधे हुए हैं। वी आर चोजन बाय हिम, हम जो है उनके द्वारा चुने गए हैं। वी आर रिडीम्ड बाय द जीसस क्राइस्ट, मैं और आप जो है उस परमेश्वर के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिली है। यू एंड आई विल रिसीव दैट इनहेरिटेंस इन द हेवन, उस परमेश्वर के द्वार में, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में मुझे और तुम्हें जो है अधिकारी वो मिलने वाला है। सो इट्स अ कवेनेंट ऑफ सॉल्ट, ये हमेशा निरंतर को बताते हैं। द थर्ड एस्पेक्ट वी सी, तीसरी बात को जब हम देखते हैं वो ये है, सॉल्ट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट। प्रिजर्वेटिव एजेंट क्या इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को खराब होने से रोकती है, खराब होने से बचाती है। अगर आप देखेंगे आज के दिन हमारे पास फ्रीजर्स है, जो भी चीज, मटन या जो भी चीज जो खराब नहीं होनी चाहिए उसे हम क्या कर देते हैं, लाकर फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, और ये बहुत दिनों तक हमेशा रहता है। लेकिन एंशिएंट टाइम्स में, उसके पहले जब क्या होता था पता है, लोग जब भी कोई भी चीज जो है उसे बहुत दिन तक रखना होता, खास करके मटन को जो है लोग क्या करते थे, उसके ऊपर नमक रगड़ कर, नमक में लिपट कर, कपड़े लगाकर, या फिर किसी भी बर्तन में या डब्बे में या फिर किसी चीजों के अंदर बंद करके वे रखते थे। और कुछ चीजों जो है होते हैं कि वो नमक में उसमें रगड़ कर, उसे सुखाकर और कुछ दिनों के बाद वो खाते थे करके हम देखते हैं। सो व्हाट डज इट डू, व्हाट इज द थिंग इट इज डज, ये क्या करता है नमक? नमक जो है ये सड़ने से, कोई भी चीज को खराब होने से रोकती है। सो सॉल्ट इज लाइक अ प्रिजर्वेटिव एजेंट, जो हर एक चीज को सड़ने से रोकती है। आज जब परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम इस पृथ्वी के नमक हो, तो मतलब क्या है, इस पृथ्वी के अंदर रहने वाली हर एक चीजों को सड़ने से या फिर खराब होने से रोकने की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आज मुझ पर और तुम पर है। मैं और आप, मुझे और आपको जो है इस चीज को पूरा करना है। अगर हम आज दुनिया में देखते हैं, संसार में देखते हैं, हाउ इज द वर्ल्ड टुडे, आज इस संसार के अंदर जो है रोमियो उसका 18वां अध्याय 18 से 32, रोमियो उसका पहला अध्याय 18 से 32, रोमियो उसका पहला अध्याय 28 से 32 वचन के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि आज पूरी संसार, पूरी दुनिया के अंदर जो है अनैतिकता से भरी हुई है, दुष्टता से भरी हुई है, लालच यहाँ पर भरा हुआ है, एक दूसरे के बारे में द्वेष है, धोखा है, लोग जो है अपने जुबान को जिस तरह से चाहते हैं वैसे यूज कर रहे हैं, और एक दूसरे के प्रति नफरत है। ये सारी बातों को अगर हम देखते हैं, दिस इज द वर्ल्ड वी कैन सी टुडे, इस तरह की दुनिया आज अगर हम देखते हैं, तो ऐसी दुनिया को लेकर प्रभु यीशु मसीह पता था उनको, तो ऐसी दुनिया के अंदर और कोई भी होप नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह से इस पृथ्वी को बचाने के लिए आया हूं, वैसे तुम जो है इस पृथ्वी के अंदर रहकर यू शुड बिकम द प्रिजर्वेटिव एजेंट, द सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट। आज मैं और तुम्हें जो है उस बात को बचाने वाले, चीजों को खराब होने से रोकने वाले पदार्थ आज हम बनना है, नमक की तरह आज हमें बनना है। कैसे बने? हाउ टू बिकम दैट प्रिजर्वेटिव एजेंट, उस नमक की तरह आज हम इस संसार में किस तरह से बने अगर हम कहेंगे, तो पहला जो है हम देखते हैं, द एवरी बिलीवर्स हैव टू इंटरसीड फॉर द वर्ल्ड। हर एक विश्वासी जो पृथ्वी का नमक है, सबसे पहला जो है काम उनको ये करना है, हमारी दुनिया के लिए हमें आज मध्यस्थी करना है। एजेकियल चैप्टर 22 वर्स 30 to 31, एजेकियल की पुस्तक 22वां अध्याय 30 से 31 वचन के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होकर मध्यस्थी करे, और इसलिए इस मध्यस्थी को पूरा करने के लिए एक प्रिजर्वेटिव एजेंट की जरूरत है। वो क्या है? नमक। और नमक कौन है? आज मैं और आप जो है एक नमक की तरह है। बेस्ट एग्जाम्पल वी सी इन द बाइबल इज अबाउट द एब्राहम। सबसे अच्छा उदाहरण अब्राहम के बारे में हम देखते हैं। कई बार हमने इनके बारे में सुना है संदेशों के माध्यम से। जब सोदोम और गोमोरा शहर परमेश्वर के विरुद्ध से भरे हुए थे, जो मैंने अभी पहले कहा है रोमियो उसका पहला अध्याय के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भी पाप था वहां पर सोदोम और गोमोरा के अंदर हम देख पाते थे। उस देखकर परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे नाश करूंगा, लेकिन उसके बीच में जो है एक व्यक्ति आता है और वो है अब्राहम।
अब्राहम कहता है कि संसार के अंदर, सोदम गोमोरा के अंदर अगर एक 5 लोग भी मिलेंगे, एक 10 लोग अगर आपको मिलेंगे, नैतिक लोग, यानी कि नमक की तरह रहने वाले लोग अगर मिलेंगे, क्या उन्हें नाश करोगे? परमेश्वर कहता है नहीं, आई विल नॉट डू। तो आज परमेश्वर जो है हम जैसे लोगों को इस धरती के ऊपर इसीलिए रखा है कि हम इस धरती को, इस पृथ्वी को बचाए। कैसे? इंटरसीड करें। टुडे यू एंड आई नीड टू बिकम द प्रोटेक्टिव एजेंट, नॉट ओनली प्रिजर्वेटिव। केवल बचाने वाले नहीं बल्कि रक्षा करने वाले भी आज मुझे और तुम्हें जो है बनना बहुत ही जरूरी है। प्रिय लोगों, बहुत ही कठिन है नमक बनकर, प्रिजर्वेटिव बनकर, इसको करने के लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन सरल हम कर सकते हैं, इजी काम कर सकते हैं। वो है हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। आमोस उसका 7वां अध्याय 2 वचन कहता है, ओ मेरे प्यारे पिता, तो हमें क्षमा कर, और हमारे देश को क्षमा कर करके कहता है। आज एक याकूब किस तरह से बचेगा, हम सारे लोग कैसे बचेंगे? प्रभु तेरी दया हम पर दर्शा कहकर वो विनती करता है। द सेम वे टुडे यू एंड आई नीड टू इंटरसीड फॉर माय पीपल। मैं और आप जो है आज हमारे लोगों के लिए मुझे मध्यस्थी करना है। पूरी दुनिया के लिए छोड़ दीजिए, आज नमक बनकर, मैं अपने परिवार के लिए नमक बनकर इंटरसीड करना जरूरी है। मेरे घर में मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता जो भी है, हो सकता है कि उन लोगों की दशा किस तरह से की है, क्या है पता नहीं, लेकिन आज उनके लिए मैं इंटरसीड करना है और उन्हें बचाना और उनकी रक्षा करना मेरा काम है। इट इज माई वर्क, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। गॉड हैज प्लेस्ड यू, परमेश्वर ने आपको आपके परिवार में एक नमक के रूप में रखा है। केवल पृथ्वी नहीं बल्कि आपके घर में रखा है, आपके स्कूल में रखा, आपके कॉलेज में रखा, आपके ऑफिस में रखे हैं, आपके एरिया में रखे हैं, ताकि हम उन लोगों की रक्षा करें प्रार्थना और मध्यस्थी के द्वारा। नोहा और लोट के समय में हम देखते हैं, जैसे कि सोदम गोमोरा में लोट को बचा लिया परमेश्वर ने, वैसे ही हम देखते हैं नोहा के टाइम पर नोहा और उनके परिवार को बचा लिया। मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग जो है बच जाते हैं परमेश्वर के प्रकोप से। आने वाला दिन जो है बहुत ही यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट है, अंत समय निकट है करके हम कहते हैं। प्रभु का प्रकोप जब आएगा, उससे बचने के लिए आज मेरे लिए, तुम्हारे लिए जो है एक मात्र है, वो है प्रभु के सामने आकर विनती करना। द सेकेंड वे ऑफ प्रिजर्वेटिव इज दिस, हम किस तरह से हमारी दुनिया के अंदर एक प्रिजर्वेटिव एजेंट नमक की तरह कैसे बनना है पता है? स्वाद लाना है। नमक हमेशा स्वाद लाता है खाने में। अगर खाने में नमक नहीं है तो हमें स्वाद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता है। इट ब्रिंग्स अ फ्लेवर, और इसका काम है फिर स्वाद देना। अगर स्वाद ना दिया तो फिर क्या उपयोग उसका? तो आज मैं और आप जो है, हम अपने जीवनों के अंदर स्वाद देना जरूरी है। कैसे दें? बाय प्रैक्टिसिंग अ गॉडली बिहेवियर। आज मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरे बातों के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे सोच के द्वारा, इन सारी बातों के द्वारा मुझे लोगों के जीवनों में जो है क्या करना है? स्वाद को लेकर आना है। खास तौर से, विशेष तौर से जो है आज मसीही लोगों के लिए हमें अपने लफ्जों को, हमारे शब्दों को जो है नमक से सीजन करना है, नमक से जो है उसे स्वादिष्ट करना है। कुलुस्सियोस का 4 अध्याय 6 वचन कहता है, लेट योर स्पीच ऑलवेज बी विद ग्रेस एंड सीजन विद सॉल्ट। तुम्हारा बोलने की वचन जो है हमेशा अनुग्रह से परिपूर्ण हो और नमकीन हो या फिर स्वादिष्ट होकर कहता है। तो आज हमारे जो वचन है लोगों के साथ में जब बातें करेंगे, ये हमारा जो है नमक से या फिर स्वादिष्ट होना बहुत ही जरूरी है करके देखते हैं। एक बार एक परमेश्वर का सेवक जो है हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं, जाकर बैठते हैं और उनका कटिंग बार जो सैलून में नाई होता है, बार्बर, उनके बाल काटने लगते हैं। 1-2 मिनट के बाद जो है उसके बाजू के चेयर में एक व्यक्ति आता है। जैसे वो पर्सनालिटी अंदर आते हैं, सब लोग शांत हो जाते हैं और वो बैठते हैं। बैठने के बाद उनके बाल काटने लगते हैं। सभी लोग जो है शांत हैं और वो व्यक्ति बोलते जा रहा है, लोग सुनते जा रहे हैं, चुपचाप सुनते जा रहे हैं। और उसके बाद जो है उनका हेयर कटिंग हो गया और निकल गए। निकल जाने के बाद और एक परमेश्वर का सेवक जो वहां पर बाजू में बैठा था, वो सोच करके कहने लगा कि कौन होगा
कौन होगा। और उसके बाद इनसे जब बातें करने लगा, ये सारे लोगों के स्वभाव, उनके अंदर जो है हाल चाल, सब कुछ जो है वहाँ पर थोड़ा धीमा हो गया, उनके बातें करने के और उनके सब कन्वर्सेशन जो है कुछ अलग हो गया। तो चले तो गए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर एक प्रभाव उन सलून के अंदर बार्बर यानी कि वो जो नाई है उनके ऊपर जो है ये प्रभाव आ गया। कौन था वो? और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर DL मोडी वहाँ पर हेयर कटिंग करने आए थे। और उनका बात क्या था? प्रभु यीशु मसीह के वचन को उन सारे लोगों को वो बताते गए, बता कर गए। नोबडी न्यू हिम, कोई उनका नाम नहीं जानता था, लेकिन वो यीशु मसीह को वहां पर रहने वाले सारे लोग जान गए करके देखते हैं। तो परमेश्वर का सेवक ये कहता है कि ऐसे व्यक्तियों से मुझे सीखने मिला है कि मैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों के बीच में जाकर बताते रहूं, नमकीन होकर मेरे शब्द जो है उनको कहते रहूं, इस तरह से कहता है। तो आज प्रिय लोगों, आज बहुत ही प्रामुख्य बात यह है कि हम सभी के लिए यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक बहुत ही प्रामुख्य है, लेकिन नमक को हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करना है यज्ञ के रूप में। दूसरा, ये वाचा जताती है कि हम निरंतर परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। तीसरा, मुझे और तुम्हें जो है जिम्मेदारी दी है प्रिजर्वेटिव एजेंट। आज मुझे लोगों की रक्षा करना है, उनको बचाना है। कैसे बचाएंगे? प्रार्थना के द्वारा, मेरे स्वभाव के द्वारा और वचन को बांटने के द्वारा। परमेश्वर जो है हम सभी लोगों को मदद करे कि हम उनके लिए पृथ्वी के नमक बनकर जी सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जी, इतना प्रभावशाली वचन, एक ही एक शब्द, तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ प्रिय प्रभु जी, आज आपने हम सभी को इसीलिए चुना कि हम आपके लिए नमक बनकर इस धरती के ऊपर रहे, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में। पिता परमेश्वर, हमारे कम्युनिटी में, हमारे एरिया में, हमारे गलियों में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कॉलेज में, ऑफिसेस में, हर एक जगह पर नमक का स्वाद बनकर हमें जीने के लिए मदद करे पिता। और जो हमारी जिम्मेदारी है इस संसार को, हमारे लोगों को, हमारे कलीग्स को, हमारे इन सारे लोगों को बचाने का एक ताकत, एक जरिया आप हमें देकर चलाइए पिता। आप ऐसा करेंगे, ये विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ದಾಹ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ सदा काल ಆಗಿರಲಿ स्वामी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। और फिर एक बार आप सभी को सूचनाएं, हमारी संडे की सभा जो है सुबह 11 बजे चलाई जाएगी और हमारी बुधवार की आराधना जो है शाम को 8 बजे ऑनलाइन इसी तरह से चलाया जाएगा। और हमारी यूथ की मीटिंग्स जो है वो संडे को शाम को 6 बजे जूम ऑनलाइन पर संडे स्कूल एक्टिविटी पूरे सप्ताह भर टीचर्स अपने बच्चों को भेजेंगे। और विशेष तौर से और एक बात है, जो फ्राइडे के दिन टीन्स फेलोशिप, टीन्स के लिए जो है समय होगा। 13 साल से 18 साल के बच्चे, जवान इसमें जुड़ सकते हैं और आपके लिए बहुत ही अद्भुत रूप से गेम्स और वचन के द्वारा वे अगुवाई करेंगे। और उसी तरह से जो है हमारे सैटरडे बाइबल स्टडी, सिस्टमैटिक थियोलॉजी, इसे हम चला रहे हैं। इसमें भी आप भाग लेकर आप आशीष पाए। और विशेष तौर से सारे हमारे चैन प्रेयर जो है एवरीडे इसी तरह से चलाए जाएंगे। तो गॉड ब्लेस अस ऑल। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। और हम रुके हुए हैं हमारे फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के लिए, और किस तरह से हम प्रार्थनाएं चालू करेंगे, जो भी करना है अभी और पूरी तरह से खुला नहीं है। प्लीज आप अफवाहों के ऊपर विश्वास ना करें, लेकिन हम वेट कर रहे हैं प्रॉपर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन के साथ। हम आपको फिर एक बार इस बारे में बताएंगे कि कैसे करना है। सो गॉड ब्लेस अस ऑल। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।